کمال پاشا صاحب CDM کا یونین زندہ باد پاشا 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 آگے پاشا آگے پاشا 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 نارا 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 پاشا نارا 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 پاشا نارا 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 پاشا عزت کمال پاشا زندہ باد. میں سجاد شاہ صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں. آگے آ جائیں مشک اسٹیج پہ. بزرگ رہنما ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ناموں سے گریز کیے. سب کو میری طرف سے السلام علیکم. تمام قیادت کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، سپورٹران کو، تمام ڈائریکٹریٹ کے عہدیداران کو اور بالخصوص سینیٹیشن کے ملازموں کو اور پاشا گروپ کے جیالوں کو، میرے سر کے تاجوں کو، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. دو چار لائنیں کرسمس کا موقع ہے لکھ کے لایا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کروں گا. کہ کرسمس کی رات ہو. سن رہے ہیں مسیح برادری کے بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کرسمس کی رات ہو، سب اپنوں کا ساتھ ہو. کرسمس کی رات ہو، سب اپنوں کا ساتھ ہو. ہاتھوں میں ہاتھ ہو، ہاتھوں میں ہاتھ ہو. آپ سب پر خوشیوں کی برسات ہو. عزت کمال پاشا زندہ باد. عزت کمال پاشا زندہ باد. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عامر خان صاحب نے، ساگر صاحب نے، چودھری فرید صاحب نے، میری بہن نے، عباسی صاحب نے، جتنے مقررین تھے سب نے باتیں کی. سب نے ایک ہی ایجنڈا آپ کے سامنے ڈسکس کیا. یہ جو ٹیبل ہے، یہ جو کرسیاں ہیں، یہ جو نعرے ہیں، یہ جو محفلیں ہیں، یہ جو خوشیاں ہیں، یہ جو غم ہے، یہ جو روزی روٹی ہے، یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو برتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس ادارے کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اس ادارے کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اور اگر آپ کے گھر کے اوپر تباہی و بربادی آ رہی ہو تو ٹھیک ہے، یہ خوشی کا موقع، ہم اس کو منائیں گے. ہم اپنی مسیح برادری کی خوشی میں شامل ہیں. میں خود شامل ہوں. ہمارے ہاں ایک لفظ اقلیت کا استعمال کیا جاتا ہے. میں ویسے اس لفظ کے خلاف ہوں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کی جدوجہد شروع کی تو اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان میں بسنے والا ہندو، سکھ، عیسائی، اس کو جو ان سے ہے وہ اس کے حقوق نہیں دیے جائیں گے. ایک مشترکہ جدوجہد تھی کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شہری، اس کو اس کے حقوق اس کی دہلیز پہ دیے جائیں گے، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو منصب ہے، اس سے بالا تر سوچ تھی. یہ ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں تفرقے. یہ ہم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بانٹتے ہیں، نفرت کے انبار لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو حقارت اور دھتکارتے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب پہ حملہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ گئے کہ زبردستی تو آپ کسی کے اوپر مذہب کو انفورس بھی نہیں کر سکتے. اخوت، محبت، بھائی چارے کا درس ہر جگہ پہ بائبل میں بھی دیا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی دیا گیا ہے کہ یہ جو نرمی ہے، یہ جو شفقت ہے، یہ جو محبت ہے، اس کا پیغام ہے نہ صرف ملک پاکستان میں، جو دنیا میں قومیں
इस वक्त तरक्की कर रही हैं, जिसमें आपके डेवलप मुल्क हैं, जिसमें इंग्लैंड है, बरतानिया है, अमेरिका है, कनाडा है, ये क्यों बढ़ रहे हैं? मैं खुद बतौरे मुसलमान एक ऐसे मुल्क में 15 साल रह के आया हूं जहां पे क्रिश्चियंस उनकी हुकूमत है, उनकी मेजॉरिटी है, उनको इज्जत वहां पे रब्बे कायनात ने दी हुई है। मैं वहां पे एज अ माइनॉरिटी गया था, और मैं आपको एक वाकया सुनाऊं अपने भाइयों को कि रमजान का महीना जब आता था, रमजान मुबारक का महीना जब आता था, तो मेरा जो क्रिश्चियन बॉस था वो मुझे पूरे रमजान के महीने की ना सिर्फ छुट्टी देता था, बल्कि कहता था कि ये छुट्टी तेरी मैं सालाना छुट्टी में से भी नहीं काटूंगा, और इसके फौरन बाद तेरी ईद आनी है, ईद के लिए मुझे 500 पाउंड एज अ गिफ्ट वाउचर, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया बनता है, वो देता था, और कहता था कि क्योंकि तू रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो तुझे पूरे महीने की एजाजी छुट्टी और एजाजी तोहफा दिया जाता है, और तू अपनी ईद भी मना अपनी फैमिली के साथ। तो ये मैं तो उस रंग में अपनी जिंदगी गुजार के आया हूं, और मैं जब यहां सीडीए के अंदर अपनी मसीह कम्युनिटी को देखता हूं या आपकी कॉलोनियों को देखता हूं, तो मैं तो मुतमईन नहीं हूं भाई, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। हम वहां पे रहे, मैं बाहर रहा, तो मुझे किसी ने नहीं कहा वहां पे तू मुसलमान है, तू फलानी जगह पे नहीं रह सकता। मुझे नमाज पढ़ने की भी आजादी थी, बाहर रह के भी। मैं जिस दफ्तर में नौकरी करता था वहां पे मस्जिद नहीं थी, मेरे बॉस ने मुझे बाकायदा एक रूम एलोकेट कर दिया, उसने कहा कि पाशा तुम यहां पे 5 वक्त नमाज पढ़नी है, इस कमरे के अंदर पढ़ो। वो मुसलमान नहीं था भाई। तो हम ये जो मसीह बरादरी की खुशी में सिर्फ एक केक काट के समझते हैं कि हमने आपकी खुशी में और आपके साथ अपना हक अदा कर दिया, मैं नहीं समझता। जब तक हम ये जो फिरका वारियत की आड़ में, ये जो मजहब की आड़ में, ये जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को इस्तेमाल करके बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, जब तक हम इसका खात्मा नहीं करेंगे, जब तक हम मसीह कम्युनिटी को अपने गले नहीं लगाएंगे, मैं नहीं समझता हूं कि हमारा ये पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान होगा। और इंशाअल्लाह ताला सीडीए के अंदर मेरे वालिद साहब मरहूम फरद कमाल पाशा साहब, वो वाहिद शख्स थे जिसने क्रिश्चियन कम्युनिटी को गले लगाया। पुराने बैठे हैं, लगाया नहीं लगाया? एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था हमारी मसीह बरादरी के साथ सफाई के हवाले से, उन्होंने उस लफ्ज को खत्म करवाया। 8 मसीह कॉलोनियां बनवाई, और ये जो मसीह का लफ्ज है ये आपकी डेजिग्नेशन में बतौर कानून बनवा के लगवाया, ताकि वो जो एक गलीज लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था उसका खात्मा हो जाए। तो ये मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं इस सोच का मालिक हूं। ये कोई ऊपर से वही उतरी हुई है, आसमानी सहीफा उतरा हुआ है कि हमारे मसीह कम्युनिटी के लोगों ने कूड़ा ही उठाना है। ये एनवायरमेंट, ये वाटर सप्लाई, ये मेंटेनेंस, ये रोड, ये स्टेट, ये लैंड, ये रेवेन्यू, ये कोई हम लोग जहेज में लिखवा के लाए हुए हैं सारे के वहां पे मसीह का बच्चा या मसीह काम नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों का मुस्तकबिल इज्जत कमाल पाशा से वाबस्ता है, और वो उनके लिए तालीमी मौके पैदा करना, उनको एक अच्छा मयारे नौकरी देना, मैं इस सोच का मालिक। और मैं ये समझता हूं कि जब तक हम ये तफरीक खत्म नहीं करेंगे, हमारा ना ये मुल्क आगे बढ़ सकता है, ना ये इदारा आगे बढ़ सकता है। हम जुम्मा है माशाल्लाह, आज
میرا خیال ہے کہ اس وقت سارے دفتر خالی ہو چکے نہیں ہو چکے ہیں، سارے مسلمان ہمارے بھائی جمعے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم کرسچنز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی عبادت کا دن اتوار کا ان سے کام کروا رہے ہیں؟ نہیں کروا رہے۔ شارٹ منٹ میں کال آ جاتی ہے، جی آ جاؤ، میں باہر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے سارے دوست گورے تھے، اتوار کے دن وہ چرچنگ کرتے ہیں، مجھے بلاتے تھے، فیسٹنگ ہوتی تھی، اس کے علاوہ ان کے جو پیسٹرز تھے وہ پریچنگ کر رہے ہوتے تھے ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر، کوئی گھر میں کر رہا ہے، کوئی چرچ میں کر رہا ہے، کوئی گراؤنڈ میں کر رہا ہے، کوئی ایسی ریلیجیس لوکیشنز پہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اور یہاں پہ کرسچن کمیونٹی خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پاشا گروپ کا CBA دیا تو ہم جب آپ کا کرسمس کا پروگرام کیا کریں گے، ہم اس کے اوپر ساری تفریح ختم کر دیں گے، ہم اپنے مخالفین کو بھی دعوت دیا کریں گے اور ایک جوائنٹ وینچر بنا کے مسیح برادری کا 25 تاریخ کی سیلیبریشن ہم ایک پوائنٹ پہ کریں گے تاکہ یہ تفریق بھی ختم ہو جائے CBA کے اندر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب یہ میرے بھائیوں سارے کام سب کچھ جو ہم نے کرنا ہے وہ اس ادارے سے کرنا ہے۔ یہ ادارہ لگ گیا وینٹیلیٹر پہ، اس ادارے کی تقسیم کا معاملہ آ گیا، اور یہ ادارہ اگر تقسیم ہوا تو آپ بتائیں کیا ہوگا؟ بے روزگاری آئے گی۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، ہم نے کل چودھری یاسین، امان اللہ خان آفیسر ایسوسی ایشن، آل آفیسر ایسوسی ایشن، ڈوگر گروپ اور ورکر لیگ، ان سب کو ہم نے دعوت نامے بھجوا دیے، اور یہ بڑا پن ہے ہمارا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھنے کا، میرے پاس ایک نام ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہے، وہ کوئی مئو کا لال نہیں چھین سکتا، اس کا نام ہے فرد کمال پاشا۔ مجھے جو عزت اللہ نے دی ہے، میرا خیال ہے 2 منٹ رک جائیں۔ لوکیشن ہے اس پاس سے کھڑے ہوئے اس پاس اس کی لوکیشن چینج کرے گا۔ میں نے 5 تاریخ کا میسج دینا تھا، اس کے بعد تو میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا 5 تاریخ کے احتجاج کی۔ دیکھیں یہ ادارے، اس کی جو مراحت ہیں، یہ سارا کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ پچھلا بلدیاتی بل جب آیا تو اس وقت CBA تھا چودھری یاسین کا، انتظامیہ نے اور حکومت نے رابطہ کیا، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے رابطہ کیا
चौधरी यासीन के साथ। यहां पे यासीन साहब ने उनको लिख के दे दिया कि बल्दियाती निजाम इस्लामाबाद में ले आए, मुझे एक सेक्रेटरी ऑफ कमीशन की सीट दे दें जिसके तहत मैं बल्दियाती नुमाइंदों के फंड खाऊं और सीडीए में जो उनकी एक पैदाइशी खसलत है कप्पा टुक्की की वो मैं जारी रखूं। तो इदारा तकसीम हुआ, तबाही और बर्बादी आई, यहां पे बदमाशी का दौर शुरू हुआ। यहां पे एक G6 का वो क्या नाम है, वो अल्लाह देता, जो अपने सिग्नेचर भी पूरे तरीके से नहीं कर सकता, इस जैसे टके मार आके हमारे इदारे के ऊपर विराजमान हो गए और इस इदारे को ऐसे कई निकम्मों ने आके लूटना शुरू कर दिया। ये इदारा हमारे लिए मां का दर्जा रखता है। इसी तरह अब दोबारा ये जो तब्दीली सरकार है जिसके हम भी पैरोकार हैं, ये सरकार भी अब हमारे गले में फंदा डालना चाहती है। इसने जो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई हुई है, बगैर सोचे समझे, ना खोते कोड़े की तमीज कानून पास करी जा रहे हैं, जैसे ये पाकिस्तान जो है कोई बनाना रिपब्लिक है, यहां पे कोई ना कानून है, ना आइन है, ना तरीकेकार है। तो ये जो बदमाशी का एक अंसर यहां पे पैदा हुआ है, 14,000 हमारे मुलाजमीन हैं और 14,000 बहुत बड़ी ताकत होती है या नहीं है? सारे भाई बताओ जरा, आप ताकत हो, खानदान हो। और ये सैनिटेशन के मुलाजमीनों में आपको ये बताना चाहता हूं कि ठेकेदारी निजाम में कोई पेंशन नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, कोई भर्तियों के कोटे नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। ये जो आपका शबखून मारा जाएगा, इसके बाद प्लाट भूल जाओ, भर्तियां भूल जाओ, पेंशन भूल जाओ। ये चौधरी यासीन जो इस वक्त तफरीक डाल रहा है और इस गरूर और तकब्बुर में है कि मैं बहुत बड़ा तोप खान हूं और वर्कर में तफरीक पैदा कर रहा है, जबकि हमने बड़ा दिल करके चौधरी साहब आपको दावत दी है, आओ 5 तारीख को चौधरी यासीन तुम आओ, तुम सीबीए हो, तुम्हें मैं कंधे पे उठा के स्टेज पे बैठा दूंगा, तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा। आओ अमानुल्लाह खान, तुम्हें बहुत शौक है, तुमने सारी जिंदगी एंटी पाशा ग्रुप सियासत पे ही जोर रखा हुआ है। मैं आज भी ऐलान करता हूं, ये दोनों चाचे मेरे, इनको बहुत शौक है लीड करने का, ये लीड करे, मैं जवान घोड़ा हूं, मैं गाड़ी को धक्का लगाऊंगा, हम इंशाअल्लाह ताला मंजिल पार चले जाएंगे। लेकिन तफरीक पैदा ना करो। आप लोग इक्तदारों में रहे हो, मैं नहीं रहा इक्तदार में। जब हम इक्तदार में थे पाशा ग्रुप, तो सीडीए के मजदूर को पेंशन मिली, अस्पताल मिला, कब्रिस्तान मिले, भर्तियां मिली, क्या क्या नहीं मिला मुझे बताएं ना आप। और जब से ये इक्तदार में आए, आपको तकसीम मिली, आपके बच्चों की भर्ती पे बैन मिला, आपको दवाइयों की पर्चियां मिली, आपको 141 बंदे को नौकरी से निकाला गया। तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। और मैंने पूरे इलेक्शन में ऐलान किया कि यासीन साहब कामयाब होंगे, 3 महीने में बल्दियात आएगा। याद है आपको वो बातें? बिल्कुल याद है। जलसों की बातें याद है? याद है सर। और यार मेरा विजन था ना, मेरा विजन था, मैं देख रहा था, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं देख रहा था कि इस इदारे पे कितनी बड़ी तबाही आ रही है। और आप देखें कि यासीन साहब कामयाब हुए, 1.5 महीने के बाद कफील साहब तकसीम का शबखून मारा गया हमारे इदारे के ऊपर। और ये अंडे दे के दफ्तर में बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये तो मैंने कॉल दी तो चौधरी साहब जाग गए और कहते हैं जी 28 तारीख को चलो चलो अपारा चौक तू के सब्जी बेचन जा रहे, क्या करन जा रहे हैं अपारा चौक? कौन है अपारा चौक? और भाई डी चौक या प्रेस क्लब जाओगे तो वहां पे मीडिया आपकी बात सुनेगा, डी चौक जाओगे तो वहां पे चौधरी साहब डांगे पड़ेंगी। और डांगे तुम्हें पता है, तुम्हारे रिंग पिस्टन बैठे हुए, तुम डांगे नहीं खा सकते। मजदूर को फुदू लगा रहा है कि जी मैं कुर्बानी दूंगा। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं चौधरी यासीन, मत खेलो इनके मुस्तकबिल से, तुम्हारा कुछ नहीं जाना, तुम्हारी औलादें बड़े स्केलों में बढ़ती हैं, मेहरबानी करो आ जाओ। इख्तिलाफात बुलाती है, मेरे से ज्यादा कौन नफरत करता है चौधरी यासीन से? और मैं कह रहा हूं तुम्हें कंधे पे उठा के मैं स्टेज पे बिठा दूंगा, नीचे खड़ा होकर मजदूर का नारा मारूंगा,
आओ मिल के CDA बचाते हैं। मुखालफत के लिए, इलेक्शनों के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर ये इदारा खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान इज्जत कमाल पाशा का है, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल है CDA के अंदर। मैंने आगे 30 साल आपको लीड करना है। ये लोग तो चले जाएंगे, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, साजिशी नासिर है। लिहाजा अब मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहता हूं कि मेरे भाइयों 5 तारीख को 10 बजे पहुंचोगे। और आपको मैं एक बात बताऊं, खाली आप बेरोजगार नहीं होगे, आपके बच्चे भी भूखे हो जाएंगे, आपके घर में भी फाका। अपने साथ अपने बच्चे भी लाओ, अपने साथ घर वाले भी लाओ। 5 तारीख को अपने साथ अपने घर वालों को भी लेके आओ, ताकि हम एक मजबूत एहतजाज कर सकें। मैं जिसको भी कॉल दे रहा हूं, मैं यही कॉल दे रहा हूं कि सब वहां पे पहुंचे। 5 तारीख को जितना बड़ा एहतजाज होगा उतना बड़ा मैसेज जाएगा। और मैं आपको कतन मैं बता दूं आपको कि ये मरहला आसान नहीं है भाई। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जान छुटाना आसान नहीं है। यहां पे जदोजहद करनी पड़ेगी। अगर आप 5 तारीख को कहें कि मैं घर में बैठूंगा और पाशा मेरे लिए, पाशा तो जाएगा ही जाएगा, मैंने तो आगे जाना ही जाना है। मैं तो इस हद तक तैयार हूं कि 5 तारीख को कोई बंदा ना आए, कोई ना आए। मैं तख्ती बनाऊंगा, मैं गले में डाल के बोलूंगा कि CDA की तकसीम नामंजूर। पाशा वो तो कोई नहीं कदम निकाल बढ़ाओ, सकता। हम तुम्हारे साथ हैं, पाशा साहब कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। CDA की तकसीम नामंजूर, नामंजूर, CDA की तकसीम 5 तारीख को जो सुपरवाइजर आपको रोके, जो अफसर आपको रोके, वो समझ जाओ आपके चूल्हे का दुश्मन है। 5 तारीख को घर में नहीं बैठना। अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको लेके पहुंचो 5 तारीख, ताकि हम यहां से एक भरपूर एहतजाज लेके जाएं। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि 5 की तैयारी भरपूर तरीके से, और वक्त की पाबंदी करनी है। 10 बजे कहां पहुंचना है आपने? कैंप ऑफिस। यहां से हम इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब जाएंगे। 15 से 20 मिनट की यहां से साथ ही वॉक है, और हम सारे इकट्ठे होकर जाएंगे। मैं अपनी मरकजी क्यादत से, आमिर खान साहब से, सागर अब्बासी साहब से, चौधरी फरीद साहब से, आपसे अपील करूंगा, रजा अरशद साहब, तमाम डायरेक्टरेट के जो हमारे लोग हैं, इश्तियाक भाई, हर किसी ने बैनर्स बनाने हैं अपने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी तस्वीर उस पर है या नहीं है। जितनी ज्यादा डिस्प्ले कार्ड्स होंगे, बैनर्स होंगे, उतना हमारा मैसेज प्रेस क्लब के बाद जब हम ग्राउंड में खड़े होंगे उतना स्ट्रांग जाएगा। लिहाजा अभी जंग मेरे भाइयों सिर्फ एक ही है। वो क्या है? वो इदारे की बका की जंग है। तो आप सब ने 5 तारीख की तैयारी करनी है। जितने लोग सोशल मीडिया पे मेरे साथ अटैच हो, स्टिकर निकलता ही नहीं निकलता आपके पास, उसको शेयर करो, दावत दो लोगों को। खींच खींच के चौधरी यासीन उस दिन ग्राउंड में खड़ा होकर कहता मैं डंडा बरदार फोर्स बनाऊंगा जो 28 तारीख को वर्कर को निकाल के लाएगी अपारा चौक के अंदर, ताकि मैं अपनी सब्जी वहां पे बेच सकूं। खुदा का वास्ता है यार, क्या कर रहे हो तुम चौधरी साहब? हमने कल दावतनामा भिजवा दी है। हम 5 तारीख को, आखिरी बात, इजाजत, मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से, पाशा ग्रुप की तरफ से, अमानुल्लाह खान साहब, चौधरी यासीन साहब, ऑफिसर एसोसिएशन, ऑल ऑफिसर एसोसिएशन, सब इंजीनियर एसोसिएशन, उसके अलावा वर्कर लीग, डोगर ग्रुप, उसके अलावा जो नॉन रजिस्टर्ड मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिसके अंदर 20-25-30 के जो एक लोग आपस में यकजहती कर लेते हैं, नाम लिए बगैर बहुत सारे हैं। इस तरह हमारे असफर शाह साहब बैठे, इनका एक जंग ग्रुप है, इस तरह कश्मीर ग्रुप है, इस तरह बेबहा है। मैं सबको ये दावत दे रहा हूं, आओ भाइयों 5 तारीख को इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब में पूरे लाएमल का ऐलान करूंगा, और उसके बाद अल्लाह खैर की एक स्ट्रांग मैसेज गया तो हुकूमत आपसे बात करने आएगी, नहीं आएगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला वहां से अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो फिर हमारा डी चौक होगा। इंशाअल्लाह ताला डी चौक में जाएंगे और वहां पे जाके बैठेंगे। यार ये आपके उस्ताद बैठे हैं, आपसे ज्यादा मजबूत नहीं है। आप पानी बंद करो ना तो ये बैठे हुए MNAs
ਧੋਣੇ ਤੋਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਧੋ नहीं सकेंगे सवेरे। बहुत कुछ हो सकता है, बटन दबाएंगे सब कुछ होगा, लेकिन जो पहला कानूनी तरीकेकार है वो हमें प्रेस क्लब जाना चाहिए, मीडिया को अपनी आवाज बनानी चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाएअमल का ऐलान होगा। हमारी एक ही डिमांड है, अगर सोशल मीडिया पे हुकूमती नुमाइंदे और लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी एक ही डिमांड है कि सीडीए के मजदूर की पेंशन, उसके अस्पताल, उसके कब्रिस्तान, उसके सर्विस रेगुलेशन, उसके एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, उसकी प्रमोशन अपग्रेडेशन कैडर्स, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बल्दियात, हम उसके खिलाफ नहीं है। फरीद साहब ने बड़ी प्यारी बात की, बल्दियात की जरूरत है 23 इलाकों में। शहर में एक इदारा खड़ा हुआ है, सीडीए खड़ा हुआ है, इसने पाकिस्तान का नहीं दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बनाया। और क्या चाहते हो हमसे आप लोग? क्या जान लेना चाहते हो इस मजदूर की? सब कुछ करने के बाद अगर आप इस ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट या इसमें कौमी असेंबली से अप्रूवल से पहले आप ये तमाम तर श्योरिटीज हमें देते हैं कि भाई ये चीजें नहीं होंगी, तो फिर हम हर लिहाज से आपके साथ ताबुन करेंगे। नहीं तो जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, आवाज नहीं आ रही। होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जोर से यार, माशाल्लाह। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। धरना होगा, धरना होगा, सीडीए की तकसीम, ना मंजूर, ना मंजूर, सीडीए की तकसीम, ना मंजूर, ना मंजूर, सीडीए की तकसीम। ना मंजूर, ना मंजूर। सोचो 5 तारीख को जब जमे गफीर में ये नारे लगेंगे, ये मैसेज जाएगा, तो इन ऐवानों में इनको हमने बिठाया ना, कोई जेल में तो नहीं लाए हुए। बिठा सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उतार भी सकते हैं अल्लाह के। बहुत शुक्रिया।